Okay, let's just do a quick review of what we have coded in the last class, and then we will move further. So, just to remind, we had this package in.ac.jamiahamza.base, where we decided to put all the fundamental class, not just the base class, but rather all the fundamental classes, right? When I say base class, I mean the base class in a inheritance model. So it's not just the base class; it's all fundamental classes, which are the basic building blocks. So I have kept address class here, contact detail, and employee. In the employee class, we have some fields defined like employee ID, employee name, present address, permanent address, and we had the getter and setter methods defined for them. Right? That's it. All the fields were private, and all the methods are public. Right? This was intentional. Okay. Now, this employee has two contact details. As of now, we have just defined four fields. Otherwise, as per the requirement, we are going to add up more fields to it. So it has got two fields of the type contact detail. One is present address, the other is permanent address. In fact, the name doesn't appear very good. It should be contact detail, so it should be present contact and permanent contact because that is a separate class. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिफ्रैक्टर कर लेते हैं. Refractor, rename present, sorry, contact, maintaining the camel case in the um, convention of variables. And so all present contact has been changed, but we will see that this methods, because they are separately generated, so it will not change. So we have to just get rid of them and regenerate again. But before doing that, I will also refactor the permanent address to permanent factor, permanent sorry contact. Sorry, contact. ठीक है. Now these methods again. हैं? रिफैक्टर से इट हैज चेंज द वेरिएबल नेम्स. देखिए, आप वेरिएबल पर क्लिक कर रहे हैं, वेरिएबल को हाईलाइट कर रहा है ना, उसने वेरिएबल को तो चेंज कर दिया. मेथड्स जो थे वो उनको चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर आपने कन्वेंशन फॉलो किया है तो जाहिर सी बात है आप इस तरह से देंगे, अदरवाइज यू मे गिव इट सम अदर नेम आल्सो. So it's leaving it up to you. So it's easy. Just all we need to do is to just delete the existing methods, and I will regenerate. Yeah, from the source, generate getter and setters. I will select all, generate. Now it should be fine. ठीक है. Then in the next package, we had this test tab, and this test tab has the main method. Here we were trying to create the instance of a new employee, and we were trying to set all the fields which belongs to this employee. Let me say we are setting the employee name at the full name, so the variable name is also Imran, so I will change it to Shah Imran Alam. And then contact detail, again contact detail permanent contact, let's make it permanent contact to match the consistency of the previous code. Then let me copy this, paste it here, paste it here, paste it here. In fact, I should have refactored it, right? So permanent contact, in permanent contact, what we have done is in employee there are two instances of contact details. One is present contact and the other is permanent contact. There were two objects, so we can say safely that employee is composed of two contact details. It is composed of two contact details. ठीक है. We won't say employee is a contact detail. ठीक है. वहां पे क्या आता है, इनहेरिटेंस आता है. जहाँ इज ए रिलेशनशिप आती है वहां पे इनहेरिटेंस आता है. जैसे हम कह सकते हैं मैनेजर इज ए एम्प्लॉय. तो अब वर्ड से भी आप जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का कोड में रिलेशनशिप बनेगी. तो वहां आपको समझ में आ रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन रहा है ना, राइट. मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, राइट. आउटसोर्स एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय, राइट. एन इंटर्न इज अ एम्प्लॉय. सो हर जगह इज अ रिलेशनशिप बन रहा है. बट हियर इन द केस ऑफ अ एम्प्लॉय,
we are saying the employee is a present address will be wrong if we say like that, right? So we will say employee is composed of employee ID, employee name, and two contact details, one of which is present contact, the other is the permanent contact, right? तो इसका मतलब जब कंपोज्ड ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनती है इज ए के करस्पॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है? तो एम्प्लॉय क्लास हैज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रेजेंट कॉन्टैक्ट एंड परमानेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो जहाँ हैज आप लैंग्वेज में बोलने में अगर आपको लगे कि अगर आप हैज का टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंपोजिशन है, और कंपोजिशन का मतलब क्या है? एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास जो जिससे कंपोजिट हुआ है, जो इसको कंपोजिट बोलेंगे, जिससे कंपोजिट हुआ है, उसका इंस्टांस वहां आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका, राइट? फाइन, ठीक है? तो बोलने से अगर आप रिलेशनशिप को समझ रहे हैं प्रॉपरली तो उससे ही आप कोड का स्ट्रक्चर बहुत कुछ बड़े आराम से समझ सकते हैं, इट विल मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, ठीक है? लेकिन इसका उल्टा अगर हम कहना चाहें एम्प्लॉय इज अ मैनेजर, नॉट नेसेसरली, ठीक है? तो नहीं है। एम्प्लॉय इज अ इंटर्न, नॉट एवरी एम्प्लॉय इज अ इंटर्न, बट एवरी इंटर्न इज अ एम्प्लॉय, एवरी मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, राइट? तो रिवर्स रिलेशन भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना? तो रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस किस डायरेक्शन में जाएगी, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, ये भी आप बोल करके सिर्फ सेंटेंस से ही पता कर सकते हैं, राइट? तो एक टाइम के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो तो दिमाग में अपने आप बन जाएगी, बट इन द बिगिनिंग कभी-कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा बात कि क्या रिलेशनशिप इनके बीच होनी चाहिए, तो रिलेशनशिप आप सेंटेंस कंपोज करके जो सेंस बनाता है फिजिकल वर्ल्ड में, वही चीज आपको वहां पे रिफ्लेक्ट कर देनी है कोड में, ठीक है? नाउ coming to the test tab, because we are trying to run this application to this class, so we will have this main method inside it, and this is the only class where we will have the main method. Otherwise we do not require the main method in every class, right? So there may be thousands of classes, but there could be just one class which has got the main method, right, to start the execution of the program. As of now we are taking the purpose of making this class and having the main method is to just test whatever we have done so far, right? Otherwise for testing purpose, this is what we call as a driver class, right, which starts the driving, okay? This is the driver class. For testing, driver class is not suitable. Rather we have other frameworks, like one of the very old frameworks is JUnit. There are more new advanced frameworks also which are written on the top of JUnit. So these are the frameworks which gives a better way of doing a testing, right? And what kind of testing would it be? It is called as unit testing. And what is the nature of this unit testing? Developer checks his own code, right? Against some values which he expects should come as a result of certain attributes or values of the fields of the any particular class, or the output of a computation whatsoever, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट क्या करता है डेवलपर? चेक करता है, उसने सारा प्रोग्राम लिख लिया, अगर मान लीजिए कि अगर स्क्वायर नाम का मेथड है, ठीक है, तो क्या करेगा कि स्क्वायर मेथड को कॉल करेगा, उसके अंदर 5 पास करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग चेक करेगा क्या 25 रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो हर मेथड को मेथड के लेवल पे टेस्ट करेगा, राइट? सिमिलरली अब अगर ठीक है 5 का तो स्क्वायर 25 आ रहा है, 0 पास करके भी देखेगा, नेगेटिव नंबर भी पास करके देखेगा, जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो देखेगा, ठीक है? 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके भी देखेगा, एक उसमें फैक्टर 1 डाल के भी देखेगा, एक फैक्टर ज्यादा 0 डाल के भी देखेगा, एंड सो ऑन, राइट? ठीक है? हाँ, तो ये सारी चीजें बाउंड्री कंडीशन कहलाती हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि अपने ही कोड को यूनिट बाय यूनिट डेवलपर टेस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्ट, राइट? और इसका पर्पस बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको कोई भी एस्टेब्लिश कंपनी होगी जो सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, प्रोसेस फॉलो करती है, वो आपको कोई भी कोड लिखेगी, एक भी क्लास आप लिखेंगे ना, तो बोलेगी आपसे इसका यूनिट टेस्ट लिख करके दो, ठीक है? बिना यूनिट टेस्ट के वो जाएगा ही नहीं आगे, ठीक है? टेस्ट साइकिल में ही नहीं जाएगा। डिप्लॉयमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो क्लाइंट के पास होता है सर्वर, उस पे तो बहुत दूर की बात है, पहले तो कोड रिव्यू में ही आपको रोक देंगे वो, ठीक है? कहेंगे इसका यूनिट टेस्ट लिख के दो, क्यों? क्योंकि जो भी यूनिट टेस्ट है वो भी आपके कोड के साथ
चेक इन होते हैं रिपोजिटरी में। जैसे गिटहब रिपोजिटरी समझते हैं, गिटहब की तरफ से चेक इन होता है। चेक इन मतलब कोड को डालना, चेकआउट मतलब कोड निकालना, ठीक है। चेक इन करते हैं आप। जब चेक इन करते हैं तो एक बिल्ड प्रोसेस होता है जो ऑटोमेटिकली बिल्ड प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया कि रात में ओवरनाइट में चल रहा है, वो पुश करेगा टेस्टर इन्वायरमेंट में। आपका जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है आपकी मशीन, वो टेस्ट एनवायरमेंट होगा। टेस्ट एनवायरमेंट में सब कुछ सही रहा तो वो फिर जाएगा कि मतलब इंटीग्रेशन एनवायरमेंट, वहां से फिर डिप्लॉयमेंट एनवायरमेंट क्लाइंट मशीन में, ठीक है। इस तरह जाएगा। जब डिप्लॉयमेंट से पहले जो भी स्टेज रहेगा उस पे वो सिस्टम पूरा बिल्ड होगा, तो बिल्ड होने का एक प्रोसेस है कि ऑटोमेटिकली जितने भी टेस्ट यूनिट टेस्ट आपने लिखे हैं, ठीक है, वो एक अलग फोल्डर बना के या अलग पैकेज में लिखेंगे आप, राइट। उस पैकेज के सारे यूनिट टेस्ट केस ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होते हैं और वो रन होते हैं। तो पता चला कि एक सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। आपकी एक नए कोड ने, नए क्लास ने, ठीक है, या एक नए फंक्शन ने ही सिर्फ, या एक फंक्शन में एक लाइन आपने ऐड करा है ना, और आपने चेक इन कर दिया। आपने अपना नया यूनिट टेस्ट बना करके चेक भी कर लिया कि आपकी फंक्शनलिटी उससे फुलफिल हो रही जो आप चेंज चाह रहे थे। लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो कि कोई और एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी कहीं और डिपेंडेंट हो और वो ब्रेक हो रही हो, ठीक है। तो उस टेस्टिंग पे जाने जब जाएगा ये, तो क्या होगा, जब बिल्ड टेस्ट केसेस चलेंगे सारे यूनिट टेस्ट थ्रू आउट जितने लिखे हैं आज तक सारे रन होंगे और सारे पास होने चाहिए। अगर कोई भी फेल हो रहा है तो बिल्ड प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, और जिसने रिसेंट चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से बिल्ड फेल हो रहा है उसके पास वहाँ से जो मैनेजर है डिपार्टमेंट वो मेल करेगा आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक मेल भी आ जाता है कि आपकी इस चेक इन से कोड ब्रेक हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में आप लेट नाइट मेल आ रहा है, सुबह पहुंच देख रहे हैं कि आपको पड़ा हुआ है मेल कि भाई मैंने तो कबाड़ा करके छोड़ा है रात में, तो फिर आप उसको सही करेंगे। तो इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सीनियर डेवलपर के साथ भी होता है, ठीक है, कोड ब्रेक होता है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो आप फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, लाइक जे यूनिट, एल आई सेड, ठीक है। कोर जावा की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है तो फिर किसी भी फ्रेमवर्क को आप कुछ घंटों में काम लायक सीख सकते हैं। एक्सपर्टाइज तो खैर थोड़ा टाइम लेने वाली चीज़ है, बट काम लायक कुछ घंटों में सीख सकते हैं, चाहे वो जे यूनिट ही क्यों ना हो, ठीक है। कोर जावा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ अच्छा, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट डिटेल में परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल को हमने सेट करना शुरू करा, और इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी सेट करा, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर सेट करा, राइट। अब एम्प्लॉय एड्रेस सेट करना है। सेट एम्प्लॉय एड्रेस क्या कह रहा है, हमें एरर दे रहा है। किस तरह कह रहा है, कंपाइलेशन एरर, जो कि आपको रेड लाइन दिख रही है। आपका आईडी बैकग्राउंड में कंपाइल करता रहता है कोड को, राइट, हाथ के हाथ। ऐसा तो नहीं है कि दो स्टेप प्रोसेस आपको अलग अलग करना है यहाँ पर, ये तो हाथ के हाथ कंपाइल करता रहता है, और कंपाइलेशन के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो यही शो करता है। तो ये कह रहा है कि भाई सेट एम्प्लॉय एड्रेस, और इसमें क्या पास है, एड्रेस। ये जो है इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। हमने आर्गुमेंट क्या पास कर रखा है, डेली पास कर रखा है, विच इज स्ट्रिंग। तो इसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एम्प्लॉय एड्रेस में एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास करें, ऑब्जेक्ट जो का मतलब इंस्टेंस पास करें एड्रेस का, क्योंकि एड्रेस इज अ सेपरेट क्लास, राइट। और हम क्या पास कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये क्या हमें कह रहा है कि ये अप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब हम क्या करें, इसका मतलब हमें इसमें एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो जैसे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे हमें सेट करना था कॉन्टेक्ट डिटेल, तो उसके लिए हमने, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्या हुआ। इसके बाद हाँ अभी फ्री है। कल की क्या, कल की सुबह टाइम नहीं, 11:25 से शुरू होगी और फिर 3 तक चलेगी। कल सुबह का टाइम नहीं है। हाँ चलो, ये एमसीए बैच की। अब हाँ ठीक है, उनसे कह दीजिएगा बल्कि मेरे पास ही आ जाए, ठीक है, मेरे पास ही सुबह आ जाए, ठीक है, मैं डाल दूंगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, बोल दीजिए। साढ़े 10:30 बजे से हाँ, मैं ऐसे तो फ्री हूँ। ठीक है, ठीक है। आप असाइनमेंट मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उनको सीआर को फॉरवर्ड कर दूँगा जब आएगा तो, ठीक है? और एड्रेस ले लूँगा, चलिए ठीक है। ओके, ओके। ओके गाइस, तो अभी तक हमने क्या करा है, परमानेंट कॉन्टैक्ट में एम्प्लॉयी आईडी सेट करा है, फ़ोन नंबर सेट करा है, राइट? कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अभी हमने एम्प्लॉयी का इंस्टेंस इमरान में सेट नहीं करा है अभी। नहीं करा है ना? करेक्ट? पहले उसको सेट कर लें। इमरान डॉट सेट परमानेंट, ये वाला था। देखिए, अब चूंकि मैंने कंसिस्टेंसी फॉलो की है तो सेम नेम यहाँ पे आ रहा है ना, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो परमानेंट कॉन्टैक्ट आपका सेट हो गया। लेकिन इस परमानेंट कॉन्टैक्ट के अंदर अभी भी एड्रेस एम्प्टी है। अगर मैं कोड को इतने पे रन कर दूंगा फॉर एग्जांपल, और मैं चाहूँ कि क्या है इसके अंदर देखना चाहूँ, जो मैंने अभी सेट किया है, कॉन्टैक्ट में एड्रेस का सेट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी वैल्यू सेट हो गई है ना, बाकी वैल्यू सेट हुई है, राइट? तो फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय क्लास में जा रहे हैं। एम्प्लॉय क्लास में हमने कहा कि एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स हम प्रिंट करना चाहते हैं, एक मेथड मैंने बनाया। अभी तक सिर्फ हमारे पास गेटर और सेटर मेथड्स थे, राइट? तो अब हम कहेंगे भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस दिस मतलब जिस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर हम मौजूद है, राइट? उसी ऑब्जेक्ट का दिस डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसके पहले हम प्रिंट कर दें मैसेज एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, डबल क्लोज। गैस, समझ में आ रही है ना बात? फिर हमने कहा कि अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है ये? गेट एम्प्लॉय आईडी इज अनडिफाइंड, क्या मेथड है? सेट एम्प्लॉय आईडी, क्या डिलीट हो गया है क्या? नहीं है तो गेट एम्प्लॉय आईडी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? क्या कह रही है? ओह, वी नीड टू पुट अ प्लस, राइट? कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, मैसेज स्ट्रिंग है, इसके साथ एक वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है उसको भी कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ताकि दोनों मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाए, राइट? तो प्लस हमें डालना होगा, राइट? फाइन, देन एम्प्लॉय नेम, name this dot get employee name, right? Then system system dot out dot println permanent address, अगली लाइन में प्रिंट करेंगे परमानेंट एड्रेस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कैसे प्रिंट करें आप परमानेंट एड्रेस? दिस डॉट गेट परमानेंट कॉन्टैक्ट करें हम इसको, है ना, कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम पूरे कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। दिस डॉट गेट परमानेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट व्हाट इज दिस परमानेंट कॉन्टैक्ट, क्या ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा? गेट परमानेंट कॉन्टैक्ट मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा क्या? नहीं करेगा, वो तो पूरा का पूरा
ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। तो जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो फिर इसका जो भी विच इज ऑफ द टाइप कॉन्टेक्ट डिटेल, राइट। तो ये फिर देखा थे प्रिंटलन मेथड में तो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अगर उनकी फील्ड्स की हम बात करें, डॉट गेट एम्प्लॉय मेल आईडी, अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन इन चीज़ को अभी हमने सेट नहीं करा है, राइट। हम चला के देखते हैं अब क्या हो रहा है। टेस्ट टैब, देखिए एम्प्लॉय बनाया था इमरान नाम का वेरिएबल से, उसको रिफर करा था हमने, उसमें एम्प्लॉय आईडी सेट करा, उसमें एम्प्लॉय नेम सेट करा, परमानेंट कॉन्टैक्ट का एक वेरिएबल बनाया कॉन्टैक्ट टाइप का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय फ़ोन सेट कर दिया हमने, राइट। और कोई वेरिएबल बच रहे हैं क्या इसमें परमानेंट कॉन्टैक्ट में? परमानेंट कॉन्टैक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय फ़ोन हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस, एड्रेस ही बच रहा है, राइट। और तो कुछ नहीं बच रहा है। एड्रेस को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए एड्रेस टाइप का। तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए इसको रोक करके इतना करके प्रिंट करके देखते हैं क्या हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। और यहाँ भी हमने परमानेंट कॉन्टैक्ट को प्रिंट पे लगा दिया है ना। नहीं, ये सेट पे है परमानेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, फाइन। देन लेट्स रन इनटू मेथड कॉल नहीं किया ना हमने, इमरान डॉट क्या प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स था, राइट। मेथड कॉल करेंगे तब तो वो प्रिंट करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 123 जो हमने सेट करी थी प्रिंट कर दी, एम्प्लॉय नेम कर दिया, परमानेंट कॉन्टैक्ट में उसने ghu.gmail.com कर दिया, यहाँ तक कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा था, एम्प्लॉय डॉट जावा में प्रिंट करा था दिस डॉट गेट परमानेंट एड्रेस डॉट गेट एम्प्लॉय मेल आईडी। ये मेल आईडी दोबारा से कैसे पहुंच गया इसके अंदर? कॉन्टैक्ट डिटेल में सिर्फ हमें एड्रेस रखना था ना। हेलो, कौन? शायद कुछ हम लोग लास्ट क्लास में जो ट्राई कर रहे थे उसमें किसी ने कुछ एड्रेस क्लास पहले देखते थे, एड्रेस क्लास सही है, एड्रेस क्लास सही है, राइट। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय फ़ोन होना चाहिए, एम्प्लॉय फ़ोन, ठीक है, एम्प्लॉय फ़ोन होना चाहिए, राइट। ईमेल होना चाहिए, हाँ, एक एम्प्लॉय फ़ोन हो गया और एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एक एम्प्लॉय एड्रेस है, एड्रेस है यहाँ पे, राइट है ना। तो हाँ, ये नीचे था, ठीक है, फाइन। तो हमने प्रिंट क्या करा है, एम्प्लॉय आईडी में दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, आईडी को अच्छा परमानेंट कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। गेट एम्प्लॉय आईडी से प्रिंट कर दिया, देन कंट्रोल सी अगेन, लेट्स प्रिंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय फ़ोन करते हैं, राइट। फ़ोन कर दिया हमने, देन एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, एम्प्लॉय नेम मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल जो प्रिंट होगा उसमें एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय फ़ोन नंबर मिलेगा प्लस एम्प्लॉय एड्रेस साथ में हम चाहते हैं। तो जब टेस्ट ऐप को हम चला रहे हैं तो लेट्स सी, एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय ऊपर आईडी भी रहा होगा, एम्प्लॉय आईडी भी है, देन we got the message permanent contact, and then we got the employee id, employee phone number, and then we got null, right. Why null? Because address है is a object, and the reference variable by default will be set to null if nothing has been initialized to it or nothing has been passed to it, right. तो हमने अभी तक कॉन्टैक्ट डिटेल को तो हमने परमानेंट उसमें से हमने सेट परमानेंट कॉन्टैक्ट कॉल करके मेथड को परमानेंट कॉन्टैक्ट रिप्लाई में सेट कर दिया है, लेकिन परमानेंट कॉन्टैक्ट में हमने अभी तक एड्रेस सेट नहीं करा है, राइट। सो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इमरान डॉट
कैसे करें अब? परमानेंट कांटेक्ट को लेकर के उसमें से एड्रेस को लेकर के एड्रेस का में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब हमको सेट करना। हाँ, सेट करना है। कैसे करें? क्या लिखे कोड? इमरान के बाद परमानेंट कांटेक्ट के अंदर सेट परमानेंट कांटेक्ट के अंदर परमानेंट कांटेक्ट हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं, यानी इमरान के अंदर परमानेंट कांटेक्ट तो चला गया है। परमानेंट कांटेक्ट यानी कांटेक्ट डिटेल्स के जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एड्रेस है, राइट? उस एड्रेस की वैल्यूज अभी सेट नहीं है। नहीं तो अभी क्या क्या लगाए बताइए? गेटर लगाए, सेटर लगाए, किसका लगाए? एड्रेस का फील्ड हमें कहाँ मिलेगा? कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा ना। तो पहले हम क्या करें? पहले इसे गेट परमानेंट कॉन्टैक्ट को मांगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल टाइप का। अब कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर क्या है? एम्प्लॉय फोन नंबर है, एम्प्लॉय मेल आईडी है एंड एम्प्लॉय एड्रेस है, मतलब एड्रेस है। हमें क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। फिर हम क्या इसे मांगे? गेट डॉट लगा देते हैं, गेट एम्प्लॉय एड्रेस हमें मिला। अब इसके बाद हम लगाएंगे जाके सेट क्या चाहिए हमको, जो भी चाहिए। जैसे हमें अगर चाहिए हाउस नंबर, चाहिए हाउस नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, राइट? सो E4345 समथिंग, राइट? ये आपका हाउस नंबर हो गया। एंड लेट मी कॉपी इट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपी के बनाए सब है, ठीक है। सेट हाउस नंबर हो गया, देन सेट स्ट्रीट, ठीक है, लेन 6 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेट हमें क्या दिख रहा है? लोकेलिटी, ठीक है। से यहाँ की बात करें तो गुल्लक का बाद सामने आपके है, राइट? फाइन। देन सेट लोकेलिटी हो गया, सेट स्टेट हो गया, स्ट्रीट हो गया, राइट? सिटी नहीं हुआ है, स्ट्रीट हो गया, सिटी नहीं हुआ है। देखिए, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गया, लोकेलिटी हो गया, सिटी नहीं हुआ है। लेट्स से सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। देन सॉरी, सेट स्टेट दिल्ली, फाइन। क्या बचा? पिन बचा, पिन 110, सॉरी 1100, क्या है? 62 है ना, राइट? ये पिन कोड क्या था? न्यूमरिक था, राइट? इसलिए हमें कंपाइलेशन एरर मिल रही है, सब इसको डाल देते हैं, राइट? एक चीज़ और सेट करनी है, वो क्या है? नेशनलिटी, ठीक है। हालांकि नेशनलिटी कहाँ जानी चाहिए थी? हाँ, उसको एम्प्लॉय में ही जानी चाहिए थी, राइट? चलिए खैर, अब फिलहाल के लिए कर लेते हैं, लेकिन आइडियली सेंस वही बनाती है। कंट्री, हाँ कंट्री कर सकते हैं इसको, राइट? कंट्री कर सकते हैं, बल्कि ऐसा ही कर लेते हैं। जब कोई भी आपको सेंसेबल मतलब कोई डेविएशन मिले तो उसी वक्त सेट कर लेना, उसको सही कर लेना, सही होता है, राइट? तो ये कहाँ मिलेगा? एड्रेस से मिलेगा, है ना। एड्रेस में नेशनलिटी को रिफैक्टर कर देते हैं कंट्री में। अभी रिफैक्टर करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सेटर गेटर को हम डिलीट करेंगे ही करेंगे लेकिन रिफैक्टर की आदत इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कई बार आपको यही काम करना पड़ेगा जब आपने काफ़ी कोड ऑलरेडी लिख रखा है। तो उस कंडीशन में और भी कहीं कहीं अगर रेफरेंसेस होंगे तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम जब भी करें तो ये ध्यान रखें कि हम इसको डायरेक्टली रीनेम ना करके बल्कि रिफैक्टर ऑप्शन को यूज करके ही हम करें, ठीक है। ये सेफ रहेगा।
let's remove this. Yes, source जनरेट गेटर सेटर कंट्री के लिए दिखा रहा है, कंट्री को हम जनरेट कर देते हैं। फाइन, ठीक है भाई। टेस्ट ऐप में जाते हैं। सेट कंट्री दिख रही है, राइट, इंडिया कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज डन। तो अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी में जो ये नल प्रिंट कर रहा था, अब ये नल प्रिंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चला के देखें एक बार। नल नहीं प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? वहां पे एम्प्लॉय के अंदर जो मेथड हमने प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल करा है उसमें अभी हमने ले करके प्रिंट नहीं करा है, लेकिन यहाँ भी प्रिंट करके देख लेते हैं वो क्या रहा है नल की जगह, क्या कह रहा है। सेट हाउस नंबर string because the written value of int content details address is null। क्या कह रहा है ये कहाँ पे है? ये कह रहा है इसको get राइट। बताइए एरर क्यों आया? इट्स गुड दैट वी हैव फेस दिस एरर, ठीक है। बताइए क्यों आया? ये क्या कह रहा है, एरर क्या कह रहा है? एक्सेप्शन आया है आपको, ठीक है, रन टाइम पे। देखिए कंपाइलेशन एरर नहीं है ये प्रॉब्लम रन टाइम पे आई है, कोड चलने पे आई है, कहीं कंपाइलेशन एरर आपको नहीं दिख रहा है ना। ये रन टाइम एक्सेप्शन है, जब रन कर रहे हैं प्रोग्राम तो प्रॉब्लम आई है। एंड द प्रॉब्लम इज java.lang.null pointer exception, ठीक है। जैसे हर क्लास किसी पैकेज का पार्ट होती है जावा में, एक्सेप्शन भी अपने आप में एक क्लास होती है। यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को भी एक क्लास में इनकैप्सुलेट करके जेवीएम हमको बताएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम को भी, जैसे एम्प्लॉय एक क्लास है तो एम्प्लॉय के बारे में बता रहा है, वैसे एक्सेप्शन अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन की अलग अलग क्लास होगी, वो बताएगी कि उस एक्सेप्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, सब डिटेल बताएगी आपको, राइट। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज अ क्लास, null pointer exception is a class, and the fully qualified name of the null pointer exception is java.lang.nullpointer exception। यानी पूरे पैकेज के साथ अगर मैं उसको कह रहा हूं तो वो java.lang पैकेज के अंदर है। Now know one more thing, java.lang is the only package for which we do not need any kind of import, ठीक है। java.lang by default आपके हर क्लास के अंदर इंपोर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो बेसिक क्लासेस हैं जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल सिस्टम, यू आर सेइंग system.out.println, ठीक है। सिस्टम इज अ क्लास, println इज अ मेथड जिसमें आप पास कर रहे हैं, बट सिस्टम इज अ क्लास, ठीक है। एस कैपिटल है ना उसका, क्या कन्वेंशन था क्लास का आपका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। सिस्टम इज अ क्लास, एंड व्हाई सिस्टम इज अ क्लास इट मस्ट बी इन द java.lang पैकेज, दैट इज व्हाई वी डू नॉट रिक्वायर टू इंपोर्ट इट, ठीक है। अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो आपको एक क्लास यूज करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास, ठीक है। आप देखेंगे कि स्कैनर क्लास को जब आपको यूज करना है तो वो आपको बोलेगा इंपोर्ट करने को, क्योंकि वो क्या है, java.util पैकेज के अंदर है, वो java.lang के अंदर नहीं है, ठीक है। बट बिकॉज these classes system class and this exception null pointer exception, these are defined within the java.lang package, so we do not need to import them, ठीक है। अब ये क्या रहा है कि भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला, इसका मतलब नल पॉइंटर का मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटर को होल्ड करता है, यानी एड्रेस को होल्ड करता है, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक रेफरेंस वेरिएबल है जो अभी भी नल को पॉइंट कर रहा है, और इस वजह से हम एक्सेप्शन दे रहे हैं तुम्हें। नल, reason is null, what is null, pointer is null, that means some of the reference variable is not initialized with an object, and that's why I am giving you the exception। बात क्लियर है? नाम से ही काफी कुछ पता चल गया। अब डिटेल पढ़ें। कैन नॉट इन्वोक in.ac.jamiahmza.base.address, देखिए कहाँ आपको ले जा रहा है, पूरे लास्ट तक ले जा रहा है। सेट हाउस नंबर ये जो मैं आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेट हाउस नंबर जिसमें आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बिकॉज द रिटर्न वैल्यू ऑफ in.ac.jamiahmza.base.contact details.get employee id, यानी गेट एम्प्लॉय एड्रेस, सॉरी, यानी यहां तक जो हमको मिल रहा है, इस लाइन के बाद, अभी डॉट को भूल जाइए इसके आगे वाले के साथ, इस गेट एम्प्लॉय एड्रेस पे हमें जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है एड्रेस का,
वो ऑब्जेक्ट जो है वो नल है, इज नल, कह रहे ना, वो ऑब्जेक्ट नल है। सच बात है। कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर आप जाके देखें तो बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर जो एड्रेस है, एड्रेस कहाँ डिफाइंड है, ये एड्रेस डिफाइंड है, राइट। इसको न्यू एड्रेस तो नहीं करा है हमने ना, जब न्यू एड्रेस नहीं करा है तो वो बाय डिफॉल्ट नल ही होगा ना। हमने डायरेक्टली क्या करा, हमने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट इमरान बनाया, उसके अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स हमने ऐड करने शुरू कर दिए, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल बनाया, कॉन्टैक्ट डिटेल को हमने उठा करके इमरान के अंदर सेट परमानेंट कॉन्टैक्ट में पास करके सेट कर दिया। लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर फर्दर जो एड्रेस है उसको सेट अभी तक नया उसका ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करा है, उसको नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करा है। और असाइन किए बिना हम उससे कह रहे हैं कि एड्रेस हमें दो, तो जब वो हमें एड्रेस देगा तो क्या देगा, नल वैल्यू देगा। और नल वैल्यू पे जब हम कोई वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने की इन्वोक करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा है। अब हमें करना क्या था यहाँ पे, बेसिकली हमें करना ये था कि इमरान डॉट गेट परमानेंट कॉन्टेक्ट, इसको आप लीजिए, डॉट सेट एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, फाइन, न्यू एड्रेस, एड्रेस ही क्लास है ना, क्या क्लास का नाम क्या है, स्पेलिंग चेक हो रही है। अच्छा, इंपोर्ट करने को कह रहा है क्योंकि ये दूसरे पैकेज में है ना, दूसरे उसमें है, ये टेस्ट ऐप जो है दूसरी दूसरे पैकेज में एक क्लास है, और एड्रेस दूसरे क्लास में, टेस्ट ऐप इसमें है, टेस्ट में है, और ये बेस क्लास में है, राइट। तो हमने न्यू एड्रेस कर दिया, राइट। ये भी कर सकते थे, या फिर हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि न्यू एड्रेस, जो चीज़ वहाँ करा है वो यहाँ भी कर सकते थे। दोनों ही कंडीशन में फिर उसको एम्प्टी नहीं मिलता, यानी नल नल नहीं मिलता, ठीक है, ये भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख के यहाँ पे कमेंट डाल के छोड़ देता हूँ, और अल्टरनेटिवली to pre-initialize the EMP address to avoid null sorry pointer exception। क्या हम कर सकते हैं, EMP ADDRE address is equal to, वेरिएबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, न्यू ADRE एड्रेस, ये भी कर सकते थे आप, तब आपको वहां पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तब आपको वहां पे पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमने वहां पे क्या करा है, हमने ये अप्रोच न लेकर के ये अप्रोच किया कि ठीक है भाई, हमने अभी तक एड्रेस उसमें इनिशियलाइज नहीं करा, तो हमने सेट एम्प्लॉय एड्रेस इनिशियलाइज करने का ही तो काम कर रहा है। सेट एम्प्लॉय एड्रेस मेथड क्या कर रहा है, देखिए इसको खोल के देखिए, ओपन डिक्लेरेशन, सॉरी ओपन इम्प्लीमेंटेशन नॉट डिक्लेरेशन, ये क्या कर रहा है, दिस डॉट एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू एम्प्लॉय एड्रेस, जो आप पास कर रहे हैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट, तो वो उसको सेट कर दे रहा है, यही कर रहा है ना वो भी, जो काम आप यहाँ पे करते हैं, ये काम जो करते हैं वही काम तो ये एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय एड्रेस मेथड भी कर रहा है, कर रहा है ना गाइस, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो जब वही काम हमें करना है तो हमने क्या करा कि हमने सीधे तरीके से उसको सेट एम्प्लॉय एड्रेस करके न्यू एड्रेस के अंदर पास कर दिया। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो एड्रेस ऑब्जेक्ट अभी इस लाइन तक, लाइन नंबर 19 तक एड्रेस ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज जरूर हो गया है, यानी उसको हीप में जगह मिल गई है, और उसके रेफरेंस वेरिएबल जो है ईएमपी एड्रेस को, उसको एक एड्रेस मिल गया है, मतलब अब नल नहीं है, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट अभी भी नल है, जो कि फर्दर इन लाइन में, लाइन नंबर 20 टू 26 में हम जाके इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी भी कंटेंट को हम रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, राइट, और फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग हुआ, तो उसके अंदर का जैसे स्ट्रीट हो गया, हाउस नंबर हो गया, तो स्ट्रिंग भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो तब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको देगा, राइट। इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, अब सेट कर रहे हैं, सेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इमरान इमरान डॉट प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल कॉल करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हुआ, एम्प्लॉय नेम प्रिंट हुआ, परमानेंट कॉन्टैक्ट प्रिंट हुआ, उसमें परमानेंट कॉन्टैक्ट का ईमेल आईडी, परमानेंट कॉन्टैक्ट का फोन नंबर प्रिंट हुआ, राइट। एंड देन यू गेट in.ac.jamia-hamza.base.address at some hash code. This is a hash code. ठीक है, that is used by the JVM to locate this object address for permanent contact. इसको लोकेट करने के लिए ये यूज करेगा। हम इसको यूज करके उस हीप में उस एड्रेस के उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम पहुंच सकते हैं तो सी और सी प्लस प्लस की जैसी गलती जावा भी करता है। इसका मतलब अगर मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन आपको मिलती तो आप क्या करते, अब क्या होता है, अरे ये मेमोरी कॉन्टिजियस मेमोरी, ठीक है, आप अरे के फर्स्ट एलिमेंट से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो आप क्या करें कि अगर पॉइंटर आपके पास है, अगर आप पॉइंटर यूज करें तो उसके बियॉन्ड, उसकी लिमिट के बियॉन्ड जा सकते हैं। जब बियॉन्ड जा सकते हैं उसमें कुछ ओवरराइड कर सकते हैं। हो सकता है वो जो पोर्शन है वो कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, किसी और एप्लीकेशन को अलॉटेड हो, इसका मतलब आप किसी और एप्लीकेशन की मेमोरी को करप्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़े एरिया को आपने करप्ट कर दिया है तो चांसेस है कि सर्टेनली कोई ना कोई एप्लीकेशन आपका इम्पैक्टेड हो जाएगा, राइट है। दिस इज वाई पॉइंटर्स आर अनसेफ। बात क्लियर हो रही है ना, पॉइंटर आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप अगर एक अरे को आप डिक्लेयर कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू और उसके जो लिमिट अगर 10 डिफाइन कर रखी है ना, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगी इसकी 0 to 9। 9 के बियॉन्ड जाएंगे तो बोलेगा आपसे, एक्सेप्शन आपको देगा, आउट ऑफ द अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी अरे इंडेक्स से आप बाहर जा रहे हैं चूंकि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन अगर वही पॉइंटर होता तो आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, आप प्लस 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 करके पॉइंटर को जहां चाहे ले जाते, राइट, और आप कंटेंट को ओवरराइट कर सकते थे। That's a major risk. That is the reason why Java does not allow pointers. तो ये जो हैश कोड है, दिस इज अ काइंड ऑफ एड्रेस, ठीक है, बट नॉट अ डायरेक्ट एड्रेस। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा है कि कुछ इसको हम यूज करेंगे उस एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट तक हीप में पहुंचने के लिए। इतना समझना आपके लिए काफी है कि इंटरनल क्या हो रहा है इंटरनली, राइट। आप चाहे कि इसको हम यूज करके पहुंच जाए, वो नहीं कर सकते आप, वो जेवीएम के अपने इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे ऑफ द सेम क्लास, then their hash code will be different, just to indicate that, in fact, to let you know that these are two different objects, ठीक है गैस, बात समझ में आ रही है, ओके। तो अभी हमें सिर्फ एड्रेस प्रिंट हुआ क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने गेट एम्प्लॉय एड्रेस डाल रखा है, उनकी फील्ड्स को नहीं डाल रखा है। तो एड्रेस तो मतलब गेट एम्प्लॉय एड्रेस करेंगे तो हमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। एम्प्लॉय एड्रेस क्या रिटर्न कर रहा है, गेट एम्प्लॉय एड्रेस मेथड जो रिटर्न कर रहा है वो एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो स्ट्रिंग तो है नहीं है, तो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रिंटलन मेथड प्रिंट कर देगा। और उसका स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या है, स्ट्रिंग कन्वर्जन उसका एड्रेस सॉर्ट ऑफ है फुली क्वालिफाइड नेम के साथ, है ना, पूरे पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम, फिर एट द रेट सिंबल और हैश कोड, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा वो। तो हमें करना क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस के आगे जाना है, डॉट गेट। अब हम इसमें जो चीज हमें चाहिए हमें वो लेना पड़ेगा, जैसे हाउस नंबर मिला, ये लेंगे। इसको मैं एक लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल बात पेस्ट कर देता हूँ ताकि, ठीक है। गेट हाउस नंबर, और क्या चाहिए हमको बताइए, गेट स्ट्रीट, मेक सेंस नेक्स्ट, देन गेट लोकेलिटी, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करके, हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बट वो एक तरीका कैसे लिखेंगे, एड्रेस के ऑब्जेक्ट पे अलग अलग मेथड है ना, ये मेथड के अंदर अगर मेथड हमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर के हम फर्दर मेथड कॉल कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एक ऑब्जेक्ट है जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, उस पर गेट परमानेंट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जो कि परमानेंट कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है।
हाँ, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि हम पहले ही इसको यहाँ पर के एड्रेस तक को हम लेकर के किसी एक वेरिएबल में डाल लें, परमानेंट एड्रेस नाम के फील्ड में, और फिर डायरेक्टली वेरिएबल को हम बार-बार यूज़ करें, ठीक है? थोड़ा-सा हार्ड वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि नेस्टेड जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बार समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है? वो भी कर बल्कि उससे आसान तरीका बताऊँगा मैं अभी, ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं उससे आसान तरीका आपको बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा उसका अभी बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड कवर करने के बाद फिर आसान तरीका बताऊँ। दिस इज़ द वर्स्ट वे वी आर डूइंग एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? देन गेट क्या हमने करा है, हाउस नंबर स्ट्रीट लोकेलिटी, राइट? अब क्या बचा, सिटी, सिटी, देन स्टेट, हाँ, उसके बाद एक शायद एक्स्ट्रा रह गया है इसमें, इसलिए एरर दे रहा है, सॉरी, ऊपर वाले में है। गेट अभी तक क्या करा था आपने? अच्छा, पिन अब बचा, पिन एंड देन कंट्री, राइट? मेथड एक क्लोज करना पड़ेगा, देन इसको पोस्ट, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट टैब एंड ट्राई टू रन। क्या एरर दे रहा है आप देखें, कुछ कंपाइलेशन में रह गई है क्या? अच्छा देखिए, ये रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब कुछ अभी गड़बड़ी रह गई इस जगह पे, ये कुछ आ गया है फालतू का, मेरे ख्याल से। अब सेव कर लीजिए, एरर चली गई, राइट? अब चलेगा, आ रहा है प्रॉपर्ली। अब एक काम करते, अभी क्या नाम है आपका? नाम नाम संतोष जो कह रहे थे कि भाई हम बार बार इसको इतना लंबा चौड़ा कोड बार बार क्यों लिख रहे हैं, है ना? हम सीधे एड्रेस ले लें एक बार, और एड्रेस को बार बार हम असाइन करके उसको उसको प्रिंट करें, तो अ, इस चीज को मॉडिफाई कौन करेगा? संतोष आप करेंगे? आइए, एक alternate तरीका है, वो संतोष demonstrate करेंगे ताकि उससे भी familiar हो जाए लगे। कोई दिक्कत आएगी हम सबमिट करेंगे अभी, ठीक है? प्रेशर नहीं लेना है। देखिए इस लाइन तक, लाइन नंबर 19 तक एड्रेस आपका सेट हो गया है, अब एड्रेस को लेना है हमको, तो एक वेरिएबल बनाइए जिससे आप लेंगे। आप एड्रेस टाइप का बनाइए, देखिए नीचे ही उस लाइन नीचे ही एड्रेस कैपिटल लीजिए, क्लास का नाम है एड्रेस, वेरिएबल का नाम लीजिए स्पेस परमानेंट एड्रेस, पी स्मॉल परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना? कमीशन परमानेंट एड्रेस इज इक्वल टू इमरान डॉट गेट परमानेंट कॉन्टेक्ट, राइट? डॉट गेट एम्प्लॉय एड्रेस, सेमीकोलन सेपरेट करिए, एड्रेस हमको मिल गया। अभी परमानेंट एड्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक रिप्लेस करना है ये बताइए, राइट? ये पूरी चीज रिप्लेस हो जाएगी एक वेरिएबल से परमानेंट एड्रेस। कर लो फिर एक बार एक कॉपी नहीं हुआ। अभी ये चीज आपकी
है। क्या टाइम क्या हो रहा है अभी? है बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, चलो रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोड मैं अपडेट कर दूंगा, आपको भेज दूंगा उसको, और आगे अपडेट करने की कोशिश आप करिएगा, ठीक है।